Hello aspirants, you are most welcome in the syllabus explainer series for BPSC 71st mains examination. In this video, we will analyze the syllabus and the previous year questions, and based on this analysis, we will understand the syllabus in totality and the micro themes in it, right? और इन माइक्रो थीम्स के बेसिस पर हम यह समझेंगे कि व्हाट बीपीएससी इज डिमांडिंग फ्रॉम अस, राइट? और अगर हमें डिमांड समझ में आ जाती है देन विल सी कि व्हाट आर द पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे विल राइट अ वेरी ब्यूटीफुल आंसर्स, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद आवर एक्सप्लेनर सीरीज. First topic is BPSC 71st mains GS paper 1 part 1, right? And that is mostly related with history and culture. Okay, so the first theme is constitutional development of India during colonial era. 70th मेंस में बीपीएससी ने पूछा था द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861. 69th मेंस में दे आस्क्ड इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 and 68th मेंस में दे आस्क्ड अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. In this theme we have to understand, we have to read about the Regulating Act 1773, Pitt's India Act 1784, Charter Act of 1793, Charter Act of 1813, 1833, 1853, Government of India Act 1858, and Councils of India Act 1861, Councils of India Act 1892, Morley-Minto Reforms 1903, Montagu-Chelmsford Reform of 1919, and Government of India Act 1935, along with the Independence of India Act 1947. Usually students इसमें क्या गलती करते हैं? बीपीएससी जब भी क्वेश्चन पूछता है तो बच्चे इसमें सिर्फ प्रोविजंस मेंशन करके आगे बढ़ जाते हैं एंड दे थिंक कि आउट ऑफ 10 दे कैन गेट 5 to 6 मार्क्स, एंड दैट इज एक प्रॉब्लमेटिक सोच है, राइट? तो इसमें बेसिकली डिमांड क्या है? डिमांड है यू हैव टू राइट द बैकग्राउंड ऑफ अ पर्टिकुलर एक्ट specifically in your introduction part, right? Then you have to mention the features and the provisions in your body part. Thirdly, you need to identify the issues associated with that particular act, right? And that you can mention through the diagram, specifically with the help of hub and spoke diagram. For example, like this. ये हब एंड स्पोक डायग्राम है एंड यू कैन मेंशन द इश्यूज विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ हब एंड स्पोक डायग्राम, राइट? मैं यहां डायग्राम बनाने के लिए क्यों कह रहा हूं? बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन के लिए यूजुअली 2 पेजेस मिलते हैं, ओके? और हमारे पास रिप्रेजेंटेशन का ये एक बहुत अच्छा मेथड हो जाता है, ओके? एंड लास्टली वी नीड टू मेंशन द एसेंस ऑफ द एक्ट स्पेसिफिकली इन द कंक्लूजन पार्ट. इसेंस मींस कि फ्यूचर में इसका इंपैक्ट क्या हो गया या फिर कैसे ये चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या करंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में रिफ्लेक्ट होती है, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज नेशनलिज्म एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट. ये बीपीएससी पार्ट जीएस पेपर 1 पार्ट 1 का दूसरा थीम है, नेशनलिज्म एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट. 70th मेंस में पूछा गया था हाउ फार द ब्रिटिश पॉलिसी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, एक्सप्लेन. सेकंड इज 68th मेंस में डिस्कस द फैक्टर्स फॉर द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, हाउ इट गेव डायरेक्शन टू द फ्रीडम स्ट्रगल. तो इस टाइप के क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन फ्यूचर एज वेल. इस क्वेश्चन में मोस्टली ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कि कैसे नेशनलिज्म डेवलप हुआ, कैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट डेवलप हुआ, राइट? तो इन सारे केसेस में हमें ये ध्यान रखना है कि देयर आर 2 मेजर फैक्टर्स. वन इज हेटेरोजेनेटिक एंड अनदर इज ऑर्थोजेनिक.
genetic factors, right? Under heterogenetic factors, we have to mention the outside factors, and under orthogenetic factors, we need to mention the inside factors, right? For example, there were political and administrative factors, right? There were certain reaction to the colonial policies, right? There were certain economic factors, there were certain socio-cultural factors such as movement, rediscovery of India's past, cultural renaissance, vernacular literature, right? Under economic factors, you can mention colonial exploitation, common enemy, or new and emerging social classes, right? Poverty and famines. So these were the several factors under these categories. Some more categories can be Western and Western thought and education with the help of press and Western education, right? Means of communication were also some of the factors which causes the nationalism, or which give impetus to the emergence of nationalism in India, right? And last but not the least, leaders and movements. So ढेर सारे पैरामीटर्स और ढेर सारे डायमेंशंस आपको खोलने पड़ेंगे यहां पे ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए, राइट? ये दूसरा थीम है हमारा इस पार्ट का. थर्ड थीम इज अर्ली मूवमेंट्स इन बिहार. फॉर एग्जाम्पल 70th मेंस में, 69th मेंस और 67th मेंस में संथाल अपराइजिंग के बारे में पूछा गया था. 68th मेंस में दे आस्क्ड अबाउट बिरसा मूवमेंट एंड इंडिगो रिवोल्ट. सो देयर वर सेवरल अर्ली मूवमेंट्स. अर्ली मूवमेंट्स का मतलब है जब तक गांधी जी नहीं आए थे. बिफोर गांधीयन एरा देयर वर सर्टेन movements which occurred, which we witnessed in the Bihar region or in the northern region of India, right? ऐसे क्वेश्चंस में यूजुअली स्टूडेंट्स गलतियां क्या करते हैं? दे यूजुअली टॉक अबाउट द क्रोनोलॉजी ऑफ द मूवमेंट. यहां पे आपको क्रोनोलॉजी पूछा जा सकता है, बट अगर स्पेसिफिकली मेंशन ना करें, क्रोनोलॉजी पूछ रहे हो, तब तक आपको सिर्फ क्रोनोलॉजी पे रिलाई नहीं करना है. यहां पे आपको क्या करना है? यू हैव टू मेंशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द मूवमेंट. स्ट्रक्चर एज इन organizational structure. You have to mention the environment of the movement. Thirdly, you have to mention whether it was a spontaneous movement or not, whether it's a structured movement or not, and you have to talk about the resources of the movement. So this is the structure of the movement. Then you have to mention about the leadership, right? Whether they were educated or charismatic, something in this manner or in this fashion, right? Then you have to mention the objectives of the movement, whether they were against the state, whether they were against the rule of law or not, right? और कौन सा ऐसा क्लास या सेगमेंट था जो उनके इमीडिएट एनिमीज थे, राइट? ये सब सारी चीजें आपको मेंशन करनी है. देन यू हैव टू मेंशन द मीन्स of the movement or means that they used during the movement and their major demands that you have to mention. In सब के बाद you have to mention the after effects or the consequences of the movement, right? Apart from these parameters, you need to mention chronology as well, राइट? और इन सारी चीजों को भी आपको क्रोनोलॉजिकली मेंशन करना है. सो ये हमारा तीसरा थीम था जिसमें अर्ली मूवमेंट्स इन बिहार की बात कर रहे थे और हमें इन पैरामीटर्स में अपने आंसर्स को लिखना चाहिए, राइट? नेक्स्ट थीम इज इंट्रोडक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वेस्ट एजुकेशन इन Bihar. For example, 70th mains mein they asked about examine the expansion of Western education in Bihar from mid 19th century onward. 69th mein they asked about
Bihar has been center of learning and spiritualism for ancient time, explain in detail. 69th मेंस में, 68th मेंस में, 67th मेंस में दे आस्क अबाउट टेक्निकल एजुकेशन और वेस्टर्न एजुकेशन, जैसे तैसे करके ये बहुत फेवरेट थीम रहा है बीपीएससी का, राइट। इन सारे क्वेश्चंस में यूजुअली स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, इसमें भी यूजुअली वो सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस की बात करते हैं कि किस सीक्वेंस में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए, राइट। एंड यूजुअली स्टूडेंट एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जो वेस्ट या ब्रिटिशर्स या वेस्टर्न कॉलोनियलिस्ट ने जो इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए थे बस उन्हीं को मेंशन किया जाता है। यहां पे आपको ध्यान देना है कि ना केवल वेस्टर्न एजुकेटर्स बट Indian educators and social reformers. Apart from this, press was also a very important contributing factor in this spread of Western education, right? Isme you have to mention the sequence. Along with that, you have to mention the stakeholders, right? And the issues associated with the Western or the spread of the Western education. किस क्वालिटी में स्प्रेड हो रहा था, किस किस सेगमेंट में स्प्रेड हो रहा था, कौन कौन डिसइंचेंटेड थे या फिर डिप्राइव्ड थे, बोथ पार्ट में you have to work upon, right? And then you have to mention the consequences of the spread of Western education. तो ये सारे पार्ट्स को आपको टैकल करना है, ये सब पार्ट्स को आपको पढ़ना है अंडर दिस थीम, राइट। नेक्स्ट थीम इज इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग colonial era and its phases and impact. Phases का मतलब यहां ये है moderate phase, extremist phase, right, Gandhian phase and lastly socialist phase. ये सारे phases, इनके leaders, इनकी ideology, इन सारी चीजों को हमें समझना है। 69th मेंस में they asked about critically examine the contribution of moderate phase of the Indian National Congress movement. 67th में भी they asked about the factors responsible for the formation of INC, that is Indian National Congress, right? यहाँ पे usually students क्या गलती करते हैं, यहाँ पे भी वो सिर्फ sequence, events और leaders की बात करते हैं और इसी पे अपने आंसर्स को कंप्लीट करते हैं। प्रॉब्लम यहां पे ये है कि बीपीएससी यहां पे इससे ज्यादा डिमांड कर रही है। अपार्ट फ्रॉम सीक्वेंस, अपार्ट फ्रॉम लीडर्स, अपार्ट फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेस, दे आर आस्किंग अबाउट द आइडियोलॉजिकल contribution, right? Firstly, secondly, how they deepened the democratic ethos. What were the new ways of resistance? How they ensured unity among the people, among the masses. Apart from that, apart from these factors, how they ensure cultural renaissance, right? How they invoke cultural renaissance or cultural conscience, right? Because this cultural conscience, economic unity, unification, these are the most important things for the emergence of nationalism anywhere in the world, okay? Next is movement contribution, or how they contributed in the movement, or what were the movements that in which they participated, right? The reforms and the awareness they participated in, right? And how they become inspiration for the future leaders. And last but not the least, how they ensure moral and ethical leadership, right? Apart from this, you can also mention one more aspect of this, like globalizing Indian cause. So basically, जितने भी आगे के और मूवमेंट्स या लीडर्स की पार्ट हैं, उनमें आपको ये सारे पैरामीटर्स को अपने आंसर्स में मेंशन करना चाहिए। नेक्स्ट थीम, इंपॉर्टेंट थीम इज चंपारण सत्याग्रह।
इसमें भी 70th 69th में इसमें दे आस्क अबाउट चंपारण इंडिगो मूवमेंट और उसका इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या इंपैक्ट पड़ा। 69th एंड 67th में इसमें दे आस्क अबाउट द चंपारण सत्याग्रह, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है क्योंकि ये डायरेक्टली बिहार से एसोसिएटेड है, राइट। इसमें भी यू हैव टू मेंशन द आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन, द हाउ this movement ensured deepening of democratic ethos, how it created new ways of resistance, how it ensured unity among the masses. You have to mention the direct contribution or the elements that it contributed in the formation of Indian National Congress, or the morphological or physiological structure of the Indian National Congress, right? And how it ensure or how it globalized the Indian cause. So these were the factors that you have to mention in this theme or questions which can be asked from this particular theme. Next theme is 3 national level Gandhian movement. इसमें आपको NCM, CDM और क्विट इंडिया मूवमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना है। यहां पे आपको मेंशन करना है बैकग्राउंड, दी क्रोनोलॉजी, the consequences, success and failure, reasons for success, reason for failure, and apart from this you can add some more points through ideological contribution and new ways of resistance, how it inspired future leadership, etc, etc, right? Then comes to next important theme, which is role of Bihar in national movement. ये almost हर एक आंसर का जो कि नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड है, कोई भी नेशनल मूवमेंट, उसमें आपको एक एस्पेक्ट डालना चाहिए बिहार का, अगर स्पेसिफिकली न भी पूछा जाए, क्योंकि आप बीपीएससी मेंस का आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको बिहार के लीडर्स, इवेंट्स एंड इंसिडेंसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल नेकेड मूवमेंट ड्यूरिंग CDM, राइट, लाइक फार्मर्स और पीजेंट मूवमेंट ड्यूरिंग द CDM एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो आपको ये सारी चीजें along with the name of leader and their direct contribution, for example JP नारायण और इनका आजाद दस्ता, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आपको रटना पड़ेगा, राइट। Next come to contribution of key figures, specifically these 4 figures, right? ये आपको अच्छे तरीके से इनको डीपली स्टडी करना है, इनको पढ़ना है। इनका सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल आउटलुक, their outlook towards nationalism, democracy, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट, इनके सारे एस्पेक्ट रिगार्डिंग कम्युनलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इन सारे एस्पेक्ट को आपको समझना पड़ेगा। जो इनकी आइडियोलॉजी है, जहां तक अभी तक हम लोग सिर्फ आइडियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, यहां पे आपको आइडियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन को एकदम डीपली स्टडी करना पड़ेगा कि कैसे ये नेशनलिज्म को देखते थे, कैसे ये रिलीजन को देखते थे, कैसे ये डेमोक्रेसी को देखते थे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखते थे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को देखते थे, कैसे ये विलेज ऑटोनॉमी को देख रहे हैं, राइट, कैसे ये प्रोटेस्ट या मूवमेंट्स को देख रहे हैं। ये सारे एस्पेक्ट को यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। और इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फॉर एग्जांपल 70th मेंस में दे आस्क्ड अबाउट द महात्मा गांधीज कंस्ट्रक्टिव वर्क, 68th में दे आस्क्ड अबाउट द रविंद्रनाथ टैगोर्स आइडिया ऑफ सोसाइटी एंड द कल्चर, 67th में दे आस्क्ड अबाउट द Tagore's contribution in the freedom movement, 67th में they ask about the factors responsible for the emergence of Mahatma Gandhi as an eminent nationalist leader। तो ऐसे करके बोस, जेपी नारायण, महात्मा गांधी, टैगोर, नेहरू, ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं और हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्लस बीपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थीम इज टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया, डेवलपमेंट एंड फीचर्स। यहां पे स्टूडेंट्स सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि इसके फीचर्स को सिर्फ एक्सप्लेन कर देते हैं, उसको कैटेगराइज नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल उसके थीम्स को,
उसमें क्या मटेरियल यूज किया गया है, मटेरियल्स को, द सिंबल्स दैट दे हैव यूज्ड, उसको, द वेरिएशंस दैट यू कैन encounter with, right? The naturalism or the stylization that they have used or the our forefather have used while the temple architecture. तो ये सारी चीजें प्लस इसको कंपेयर करना आपस में कि इसमें जैसे बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर और बुद्धिस्ट स्टाइल कहीं आपको बंगाल वाले साइड में ज्यादा मिलेगा, राइट? उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा दिखेगा। ये सारी चीजें आप मेंशन नहीं करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं ज्यादातर मेंशन नहीं करते हैं। इसको यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा, टेम्पल आर्किटेक्चर में आपको इतने डायमेंशंस को खोलना पड़ेगा, राइट? एंड सेम केस इज विद दी पेंटिंग्स, ओके, विल सी इन अ कपल ऑफ मिनट। बट जो टेम्पल आर्किटेक्चर में आप पैरामीटर्स यूज कर रहे हैं, यू कैन यूज सिमिलर काइंड ऑफ पैरामीटर्स इन द पेंटिंग्स एज वेल, ओके। नेक्स्ट कम टू चीफ फीचर्स ऑफ मौर्यन एंड पाला आर्ट, एंड स्पेसिफिकली द मौर्यन आर्ट। BPSC is fond of the modern art and architecture. For example, 70th mains, 69th mains, 67th mains, almost हर साल वो art and architecture of modern age पूछते ही हैं। यहाँ पे स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो डायरेक्ट पिलर और आर्किटेक्चर, स्तूपा और केव पेंटिंग्स ये डायरेक्ट मेंशन करना स्टार्ट कर देते हैं। बट उनको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा कि रॉयल आर्ट्स क्या है और फोक आर्ट्स क्या है या पॉपुलर आर्ट क्या है, ठीक है? और उसके अंडर आपको बहुत सारे पॉइंट्स को डालना पड़ेगा, जैसे पिलर्स हो गए, केव पेंटिंग हो गई या केव हो गया, केव्स को बनाया हुआ। फिर उसके बाद आपको बताना पड़ेगा स्तूपा और स्कल्पचर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी चीजों को आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा और फिर उसके स्पेसिफिक फीचर्स अलोंग विद देयर इमेजेस। थोड़े बहुत आपको इमेजेस यहाँ पे बनाना इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट important theme is popular paintings and art forms of Bihar. 70th, 68th, 66 में इसमें they asked about पटना कलाम पेंटिंग, राइट? और जैसे हमने पहले भी मेंशन किया है कि इन सारी चीजों में आपको स्टाइलाइजेशन, सिंबल्स, नेचुरलिज्म, फिर वेरिएशंस, आपको मटेरियल्स, कलर्स, थीम्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या क्या थीम्स भी हुआ करते थे, क्या क्या रीजनल वेरिएशंस थे। तो ये सारी चीजों को आपको अलोंग विद द क्रोनोलॉजी एंड स्पेसिफिक फीचर्स आपको मेंशन करना चाहिए ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में, ऐसे थीम के क्वेश्चंस में, राइट? ओके। इसके अलावा हमें कुछ और भी टॉपिक्स तैयार करने चाहिए सेफ साइड के लिए, ताकि अगर वो क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछें तो हम बता दें, या फिर हम लोग इन सारे जो थीम्स और जो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनको अपने जो क्वेश्चंस हैं उनमें कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उसमें जैसे कि लीडर्स में हम तैयार कर सकते हैं मॉडरेट्स को, एक्सट्रीमिस्ट को, गांधीयन लोहिया को स्पेसिफिकली तैयार कर सकते हैं, जेपी नारायण और उनके जो सप्त क्रांति वगैरह थी उसको तैयार कर सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर, सहजानंद सरस्वती और कुंवर सिंह। तो ये इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जिन्हें हमें प्रिपेयर करना है। देन कम्स टू मूवमेंट, एनसीएम, सीडीएम, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये हमें प्रिपेयर करना ही करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस रॉलेट सत्याग्रह, एंटी साइमन प्रोटेस्ट एंड नेहरू रिपोर्ट को भी हमें प्रिपेयर करना है। पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट, 1857 रिवोल्ट, वेरियस पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स, ये एक साथ हम प्रिपेयर कर सकते हैं कि कैसे इनका नेचर क्या था, इनका स्ट्रक्चर क्या था, इनका एक्सटेंट क्या था, इनकी लीडरशिप कैसे थी, इनकी डिमांड कैसी थी, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इनके मीन्स क्या यूज किया, और क्रोनोलॉजी के साथ हमें ये तैयार करना चाहिए। देन कम्स टू ब्रिटिश पॉलिसी, ब्रिटिशर्स पॉलिसी और कॉलोनियल पॉलिसी, सब्सिडरी अलायंस वी नीड टू प्रिपेयर, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, de-industrialization in India, commercialization of agriculture, communal politics, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के टाइम में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे करंट पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ये बहुत मेंशन रहता है। देन कम्स टू इंपॉर्टेंट सिटीज, लिटरेचर एंड आर्ट फॉर्म, ये भी हमें प्रिपेयर करना है। पाटलिपुत्रा, राजगृह, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, अपकमिंग बीपीएससी मेंस में क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं कि पूछ सकते हैं। कौटिल्यास अर्थशास्त्र, वैदिक लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर, ये भी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जो पूछ सकते हैं। एंड देन कम्स टू केव पेंटिंग्स। सो दीज आर द वेरियस थीम्स एंड द टॉपिक्स फ्रॉम विच बीपीएससी कैन आस्क क्वेश्चन इन अपकमिंग BPSC mains examination from the part 1, that is history and culture.
इस एक्सप्लेनर सीरीज के अलावा हमारा जीएस स्कोर आपके लिए 4 बेसिक प्रोग्राम्स लाया है बीपीएससी मेंस प्रिपरेशन के लिए। फर्स्ट है बीपीएससी डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आपको 52 डेज का प्रोग्राम है, कोर्स है, जिसमें डेली टारगेट्स दिए जाएंगे, उसके बेसिस पे टेस्ट होगा और उसके मॉडल आंसर्स भी दिए जाएंगे और ये पूरा होलिस्टिकली कवर करेगा आपके बीपीएससी सिलेबस को। सभी के सभी टेस्ट में एटलीस्ट 7 क्वेश्चंस होंगे और इस 52 टेस्ट के अलावा आपको 4 फुल लेंथ टेस्ट जीएस के और 6 ऐसे टेस्ट भी मिलेंगे along with the solution, right? सेकेंड प्रोग्राम है बीपीएससी पीवाईक्यू राइटिंग प्रोग्राम। ये बहुत ही यूनिक है और ट्रस्ट मी इस प्रोग्राम से सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है, राइट? ये 45 डेज प्रोग्राम है जिसमें डेली टारगेट थीम्स दिए जाएंगे, जैसे हमने अभी थीम डिस्कस किए वैसे थीम्स आपको दिए जाएंगे और हर एक थीम पे क्वेश्चन सेट्स भी दिए जाएंगे जो पीवाईक्यू ही होंगे और उनका कंप्लीट सॉल्यूशन क्लासेस में मिलेगा विद डिक्टेशन, राइट? जिससे आपका बीपीएससी का सारा सिलेबस कवर होगा प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी और आपका एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट भी होगा, राइट? और आंसर राइटिंग एनरिचमेंट क्लासेस भी उसमें इन्वॉल्व होंगी, राइट? तीसरा प्रोग्राम है जो कि बीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है। इसमें 24 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होंगे, 14 सेक्शनल, 6 essay and 4 full length test of GS test papers or question papers, right? With solution, evaluation and one-on-one mentorship. Even जो और भी 2 प्रोग्राम से उसमें भी one-on-one mentorship आपको जरूर मिलेगा और वो भी डायरेक्ट फैकल्टीज के द्वारा, राइट? एंड लास्ट प्रोग्राम इज बीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज कम क्रैश कोर्स प्रोग्राम। तो इस टेस्ट सीरीज के साथ साथ आप अपने पूरे सिलेबस को क्रैश कोर्स के माध्यम से भी खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। उसमें 24 टेस्ट होंगे और ऑलमोस्ट 28 क्लासेस होंगी 2-2 घंटे की, जो कि आपके सिलेबस को कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करेंगे, राइट? ये सारे जो कॉपी इवैल्यूएशन है आपके यहाँ पे फैकल्टी ही इवैल्यूएट करेंगे, ना कि कोई ऐसे जो नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बच्चों को दे देते हैं कॉपी इवैल्यूएशन का। तो यहाँ पे फैकल्टी ही आपकी कॉपी चेक करेगी प्लस आपको 1-on-1 मेंटरशिप जो देंगे वो डायरेक्ट फैकल्टीज ही देंगे, राइट? सो आपको जैसी आपकी सूटेबिलिटी होती है, जैसा जैसा आपको सूट करता है, आप वैसा प्रोग्राम चूज कर सकते हैं, राइट? थैंक यू सो मच।